Done. Good to go? Yes, good to go. Okay. Very good morning, everyone, and welcome back to the series of webinars which me, Kriti, and Vishal sir is doing. This time, as promised in the last webinar, that we will be discussing more about how to choose college and universities and what are the right questions to be asked to Google and from where different websites where you can get the information and take a very well research based decision. I hope if I am clear to everyone, can you just say yes in the chat box, everyone? All those who have joined, can I have a quick yes from everyone that we all are audible? So chat is open for you all. Okay, right, Anjali. Priya, thank you. Okay, good. So the session will go in an interactive mode and you can use the chat option for interaction, right? So I am Nitin. I'll just start why we need this research. Okay, so instead of getting into the theory part of it, let me share a real life case with you, which I am the student is with me right now, so I'm just sharing his background. He is IIT JEE rank holder 580, electrical engineers from IIT BHU, working in a central government Coal India. Plus all the perks, so bangla, गाड़ी, सब ठीक. इस करियर को आप कैसा करियर बोलेंगे? Is it good? Is it bad? Should he be happy or should he not be happy? बताइए. Just say, is it a good career or not a good career? What you will say to this? So you can give your answers in the comment section. Is the case clear to everyone? Okay. So just share. Okay, it's a good career. That's what Priya is saying. Okay. Should he be happy or not? Okay, lovely. Happy, yeah, correct. Okay. अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, yeah, that's Anjali. There the point is, if he is happy, then it's a good career. Correct. Very well said. So अब वो 27 में मेरे पास अगर करियर काउंसलिंग के लिए आया है बंदा, तो कुछ तो चैलेंज होगा ना. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. करेक्ट. सो बट मैं इसको लॉजिकली देखूं तो बड़ा अच्छा करियर है. करेक्ट. बट नो, द पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड and he is like कि मुझे ये नहीं करना है. This is how the things have come to me. And then I asked him, what is this one thing which is disturbing you? तो बोले सर मैं I am not satisfied. Then I asked him, are you not satisfied with the type of work or the environment? Because dissatisfaction दो जगहों से आ सकता है. No sir, I have no issues with the type of work. I am an electrical engineer और वही काम मैं कर रहा हूँ. बहुत मजा नहीं आता है, बट मैं नफरत भी नहीं करता हूँ और मैं एग्जॉस्ट नहीं होता हूँ काम पर. Then I asked him what is the main issue. बोले it's the working environment is the main issue. Okay. Then we get into the further questioning में जब चीज समझ के आई तो आप बोलोगे अगर IIT रैंक 580 आया है तो बच्चे ने खुद से इंजीनियरिंग करी होगी, क्योंकि इट्स अ टफ एग्जाम टू क्रैक. जब हमने फर्दर उस बंदे के साथ बात किया, देन ही टोल्ड मी कि सर PCM was not my first choice. Then I asked him, what was your first choice? So he said, sir, my first choice was economics. Though we are realigning his career in economics. Then बोला फिर PCM क्यों ले लिया तुमने? बोले सर 95% आए थे and I belong to a small place in Rajasthan. तो घर वालों ने बोला ले लो, तो मैंने ले लिया. देन फिर कोटा क्यों चले गए? बोले सर इंजीनियरिंग करनी थी. मैंने कहा 580 रैंक बगैर मन लगाए नहीं आ सकती है.
बोले सर आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्कर, तो वो चीज मेरे अंदर इनकलकेटेड थी कि मैं जो करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। अगर डन फर्स्ट अटेम्प्ट में, हाँ 580 है, ड्रॉप भी नहीं है। मैंने बोला फिर आईआईटी बीएचयू से तुमने इलेक्ट्रिकल क्यों किया? बोले सर मेरा एक सीनियर था जिससे मैंने पूछा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने बोला व्हाट वर द अदर ऑप्शंस यू हैड? तो ही हैड एन ऑप्शन ऑफ सीएस कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी रुड़की। तो मैंने कहा सीएस पसंद नहीं था? बोले ऐसा कुछ नहीं था सर, मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी थी। ठीक, बट किसी सीनियर ने बोला, मैंने कर लिया। अनदर थिंग, मैंने कहा चल ये तो हो गया, आ गया आईआईटी की डिग्री, बहुत अच्छा, बट तूने पहला जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों लिया? बोले सर जहां मेरा पहला सिलेक्शन हुआ मैंने वहां ले लिया। यू कुड हैव वेटेड देयर, आईआईटी डिग्री इतनी अच्छी रैंक के साथ आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती थी। व्हाई यू टेक? बोले सर सेफ्टी वाज माय फर्स्ट पैरामीटर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है, मैं सेफ है फ्यूचर, बिकॉज बैकग्राउंड थोड़ा सा खराब। ठीक, सो आपको ये उस बंदे के करियर डिसीजन मेकिंग के पैरामीटर समझ में आए? अब सारे पैरामीटर्स में ही डिडंट हैड एनी से, ना उसने कोई रिसर्च किया, ना उसने कोई चीज बनाई, बस करता चल। एंड सी एट द एज ऑफ 27 नाउ ही इज स्ट्रगलिंग। दो एक बैकअप है, सब कुछ है, वो रीअलाइन कर लेगा। नाउ ही इज डूइंग सम कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स, एट 1.5-2 years वो अपनी पसंदीदा फील्ड में चला जाएगा। बट अगर इस बंदे को टाइमली गाइडेंस मिल जाता और एक प्रॉपर डिटेल रिसर्च होता, तो आज उसका करियर में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या मिलता उसको? कैन एनीवन टेल मी? तो रिसर्च आज हम जो 27 साल में कर रहे हैं, उसके 6 साल के करियर के बाद अगर ये रिसर्च वो बंदा 10th 11th या 12th में कर लेता तो उसको क्या बेनिफिट मिलता था? सो आई जस्ट वांट योर आंसर्स हियर, कि क्या एडवांटेज उस बंदे को मिलता? एब्सोल्युटली राइट, एग्जैक्ट राइट श्रेया। एंड उस बंदे के जीवन के 6-7 साल बच जाते। एंड व्हेन आई आस्क्ड बेटा फ्रस्ट्रेशन कब से आना चालू हुआ? बोले सर फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब से फ्रस्ट्रेशन आने लगी थी। सो टुडे व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉलेजेस टुडे, हमने करियर प्लानिंग पे ऑलरेडी पिछले सेशन में बात कर लिया। सेकंड प्रॉब्लम होता है सही कॉलेज चुनना, सही कोर्स चुनना, सही कंट्री चुनना, सही टाइम पे चुनना, सही बजट पे चुनना। करेक्ट? सो जो आज का सेशन जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा फायदा लेके आएगा, वो आपके जीवन के 7-8 साल बचा देगा। राइट? सो आई हैंड ओवर to Kriti ma'am, and Kriti ma'am will discuss mainly today about the college selection procedure, the course selection. Right, Kriti ma'am? बिल्कुल, थैंक यू चलिए, नितिन जी। okay, so over to you all. Pay attention और अपने जीवन के 6-7 साल बचाइए। All the best. थैंक यू नितिन जी फॉर गिविंग दैट पर्सपेक्टिव। ये गलती अक्सर बच्चों के साथ होती है, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, ऐसे स्टूडेंट्स हम हर साल देखते हैं जो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में, फैमिली के इन्फ्लुएंसेस में डिसीजन लेते हैं, and they're unable to make decisions basis what they want to do. So I'll just share my screen to talk about how students should do the research. नितिन जी एक बार कंफर्म करिएगा मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, ma'am, visible है। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हाउ शुड यू स्टार्ट थिंकिंग। हमने लास्ट 2 सेशंस में, जैसे कि नितिन जी ने कहा, हमने लास्ट 2 सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया करियर चॉइसेस कैसे बनानी है, किस तरीके से डिफरेंट करियर्स के बारे में सोचना है। और आप में से जिन बच्चों ने हमारे लास्ट 2 सेशंस अटेंड करे होंगे, उनको ही समझ में आया होगा दैट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट किस कोर्स में हमें आगे बढ़ना है, किस करियर में जाना है। तो आज का सेशन में हम बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। आप में से जिन बच्चों ने वो सेशंस अटेंड नहीं करे हैं, दे आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल्स। हम यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स आपको अभी चैट में शेयर कर देंगे, तो यू कैन गो एंड see those videos on the YouTube. So today's session is more about how to research about
the institution and the country that you want to get into once you finalize the particular course. तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम सिलेक्ट करा, जो कि हम आज की स्टेज तक हमको लगता है हम कर चुके हैं. उसके बाद हमें समझना है कि हमारे बजट्स क्या है, हम कहाँ कंफर्टेबल हैं. उसके बाद हमें किस कंट्री में जाना है. और मैं कंट्री का सवाल इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आज की तारीख में ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि हमें अब्रॉड पढ़ने जाना है, बिना सोचे समझे पढ़ने जाना है, क्योंकि सब जा रहे हैं इसलिए जाना है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे इंडिया में पढ़ना है तो मेरे ऑप्शंस क्या है, और अगर मुझे अब्रॉड जाना है तो मेरे ऑप्शंस क्या है, और दोनों में ही मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और what is exactly that I want to achieve, where will I get that, that is very important. and इसीलिए सवाल पूछना अपने आप से बहुत जरूरी है इस नतीजे पे पहुंचने से पहले कि मुझे इंडिया में पढ़ना है या मुझे बाहर जाना है. Then understand your eligible requirements. आप उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और नहीं है तो आपको क्या करना है. और उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज कैसे सिलेक्ट करेंगे जिस भी कंट्री में आपने सोचा है आप पढ़ेंगे, चाहे वो इंडिया है और चाहे वो कोई भी बाहर की यूनिवर्सिटी है. ना अगर मैं बजट की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक स्नैपशॉट दिया है ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब का, कि अगर आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पढ़ना चाहते हैं तो रफली आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फैक्टर इन, बिकॉज हम देखते हैं कि कितनी बार बच्चे हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पढ़ने जाना है, हमें यूएस जाना है, हमें यूके जाना है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुई होती. तो अगर आपको जहां भी पढ़ना है, एक आपके पास एक मोटे रूप में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हमें इस पर्टिकुलर कंट्री में पढ़ने जाना है तो ब्रॉडली this is the kind of money that I have to start planning, and the family will have to start factoring in that kind of money. And definitely scholarships or part time work, वो सब से हम additional money gather कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक एक फ्रेमवर्क आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए. और इसलिए स्लाइड पे मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट हर प्रोमिनेंट कंट्री का इंक्लूडिंग इंडिया एक ब्रॉड फीस स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस जो आपके होंगे वो मैंने यहाँ पे फैक्टर इन किए हैं. If there are any questions, you can keep putting them on the chat box and we will try to take as many questions as possible. अब सवाल उठता है कि हमें कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए और किस बेसिस पे सिलेक्ट करनी चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका गोल क्या है, आप फाइनली क्या करना चाहते हैं. अगर आप बोलते हैं कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहां सेटल होना चाहता हूँ, तो आपको ऐसी कंट्रीज देखनी चाहिए जो पीआर और सिटीजनशिप ऑफर करती है. आप बोलते हैं कि मैं बस एक बेटर एजुकेशन के लिए जाना चाहता हूँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहता हूँ, तो आपका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा. अगर आप बोलते हैं कि बस मैं पढ़ूंगा और पढ़ के वापस आ जाऊंगा, तो शायद आपका क्राइटेरिया फर्क होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बच्चे को अपना गोल पता. मैं इंडिया से पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ और इंडिया मुझे क्या ऑफर कर सकता है, और अगर मैं बाहर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मेरा गोल क्या है और उस गोल को मैं किन कंट्रीज में अचीव कर पाऊंगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कोर्स चॉइस, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगी कि डिफरेंट कंट्रीज ऑफर अ डिफरेंट इकोसिस्टम फॉर डिफरेंट कोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में हमें इंजीनियरिंग करनी है, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हमारी नेचुरली हमारे दिमाग में आएगा कि बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये ऐसी सिटीज है जहां पर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रेजेंट है. तो अगर हमें कॉलेज वहां मिलता है तो शायद हमारे लिए जॉब लगना काफी आसान होगा. अगर हम IITs की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्राइवेट कॉलेज की या एक नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहे हैं. सिमिलरली अगर मुझे इंडिया में कुछ फिल्म से रिलेटेड करना है, कुछ मूवी से रिलेटेड करना है या मीडिया से रिलेटेड करना है, तो सबसे पहला थॉट होगा कि मुझे बॉम्बे की तरफ, मुंबई की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री वहां मिलती है. सो सिमिलरली डिफरेंट कंट्रीज में भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज का इकोसिस्टम थ्राइव करता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज कौन सी कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री बड़ी और छोटी है, और आप जो कोर्स करने जाना चाहते हैं वो किस कंट्री में उसका इकोसिस्टम है. इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बड़ी हैं और जो आपको अच्छी जॉब्स दिला सकती हैं,
और बाहर कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन माइंड. द थर्ड इज द बजट एलोकेशन, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात करी कि हमारे बजट्स क्या, उस हिसाब से हमें कौन सी कंट्रीज चूज करनी है. द फोर्थ इज द लैंग्वेज. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम किसी भी देश में चले जाएंगे, हम वहां की लैंग्वेज सीख लेंगे, लेकिन सीखना, बोलना और उसमें पढ़ने में बहुत बड़ा फर्क होता है. So you have to understand that the country that you are going to is either an English speaking country, या फिर अगर आप एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो वहां की लैंग्वेज से आपको कंफर्टेबल होना होगा. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द वीजा एंड द इमिग्रेशन नॉर्म्स. क्या वो कंट्री इस वक्त आसानी से आपको जॉब वीजाज, वर्क परमिट, स्टूडेंट परमिट दे रही है या नहीं दे रही है. पता चला आप चले गए, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलता है, आपको जॉब परमिट ही नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स व्हेन यू आर कीपिंग इन माइंड द कंट्री सिलेक्शन. So okay, so there are some questions coming in. I will take these questions right after discussing the country choices. Now when I was talking about work permit, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है फैक्टर रखने का कि हम कौन सी कंट्री हमें कितना साल अलाउ करती है to stay back in that country after the completion of our studies. So this is called post study work permit, जिसे हम stay back भी बोलते हैं, कि जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो हम कितना ड्यूरेशन उस कंट्री में रुक सकते हैं अगर हमें तब तक जॉब नहीं मिला है, टू लुक फॉर आवर जॉब एंड टेक अप अ पार्ट टाइम. क्योंकि जिस दिन हमें फुल टाइम जॉब मिल जाएगा तब तो हम वर्क परमिट में आ जाएंगे, और जब तक हमारा पढ़ाई चल रही है तब तक हम स्टडी परमिट पर है. लेकिन इन दो पीरियड्स के बीच का जो गैप होता है वो होता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंट्री में कितना टाइम रुकने के लिए दे रही है, वो हमारा अलाउंस है टू स्टे बैक एंड लुक फॉर जॉब्स. तो ये फैक्टर समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. नाउ हम बात करते हैं कोर्स वाइज सिलेक्शन. सो जैसे कि इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग अगर किसी बच्चे को करना है तो इंडिया इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टडी, बिकॉज इंजीनियरिंग की ज्यादातर ब्रांचेस की हमारे पास इकोसिस्टम है. अगर मैं खाली एरोस्पेस छोड़ दूं तो बाकी ऑलमोस्ट हर ब्रांच के लिए हमारे पास इंडस्ट्री है टू गिव यू जॉब्स. अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, हांगकांग, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां इंजीनियरिंग इकोसिस्टम बैठता है. आपके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो आपको हायर करने के लिए तैयार है. अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है, मार्केटिंग पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना है, तो ये ऑलमोस्ट आपको हर कंट्री में मिलेगा. आपको इंडिया में भी मिलेगा और बाहर भी मिलेगा, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हर कंट्री को चाहिए, बिजनेस हर कंट्री के पास है, एंड हेंस दे आर हायरिंग पीपल इन बिजनेस मैनेजमेंट सेगमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज. अगर आपको डिजाइन पढ़ना है तो आपको यूरोप या यूके की तरफ जाना चाहिए. एनिमेशन या गेम डिजाइन पढ़ना है तो कनाडा या फिनलैंड आर बेटर चॉइसेस बिकॉज द इंडस्ट्री सिट्स देयर. फिल्म से रिलेटेड पढ़ना है तो अगेन आपको फिल्म की मेंटालिटी समझनी पड़ेगी. तो इंडिया, यूएस, लंदन, सिडनी, जो ये मेन I would say Hollywood, Bollywood, UK film industry, these are big industries, and hence you can be in these countries. लॉजिस्टिक्स पढ़ना है तो आपको लॉजिस्टिक्स हब्स में रहना पड़ेगा, जो बड़े ट्रांसपोर्टेशन हब्स हैं, जैसे कि सिंगापुर, दुबई, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, जहां से वर्ल्ड ट्रेड मैनेज हो रहा है, लॉजिस्टिक्स मैनेज हो रहा है. हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए फिर मैंने कुछ कंट्रीज मेंशन करी है, और साइकोलॉजी के लिए फिर कुछ कंट्रीज मेंशन करी है. सो ये कुछ एक प्रोमिनेंट कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिए हैं जिसके लिए बच्चे हमारे पास अक्सर आते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके के हमें कंट्रीज में जाना चाहिए, या इंडिया में हम पढ़े तो हमारे ऑप्शंस क्या है, अगर हम बाहर जाएं तो हमारे ऑप्शंस क्या है. सो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि कौन से पर्टिकुलर कंट्रीज में कौन से कोर्सेज या कौन से करियर्स की इकोसिस्टम थ्राइव करती है, जहां आपके जॉब्स लगने के चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे. अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझनी चाहिए. सो
काफी बच्चे हमें बोलते हैं कि मैम वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी 60% लिखी हुई थी, तो क्या 60% पे हर बच्चे का एडमिशन हो जाता है? That is not true. Eligibility is the basic criteria to say that you are eligible to sit for being assessed for the admission. मतलब अगर आपके 60% से नीचे हैं तो आपको एडमिशन के लिए असेस ही नहीं किया जाएगा, पर अगर आपके 60% से ज्यादा है तो आप एलिजिबल है असेसमेंट के लिए, उसके बाद आपको देखा जाएगा, बट ऑब्वियसली दिस डज नॉट गारंटी एडमिशन, ये एलिजिबिलिटी होती है। सिमिलरली अलग अलग कंट्रीज की डिफरेंट एग्जामिनेशंस की एलिजिबिलिटी हो सकती है, जैसे अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आइल्स या टोफल या पीटी या सीएई होता है। कोई कॉम्पिटेंसी या स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग देनी हो सकती है, एसएटी, एसीटी, एमकैट, यूएसएमएलई। पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट देना पड़ सकता है अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। आप में से कुछ बच्चों ने चैट में जर्मनी लिखा, तो जर्मनी के लिए जर्मन लैंग्वेज में स्पेशलिस्ट होना जरूरी है, तो आपको टेस्ट डैफ या डेल्स देना पड़ेगा टू क्वालिफाई इन जर्मन लैंग्वेज। सो एलिजिबिलिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको बाहर जाना है। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी। हमने पहले सबसे पहले समझा कि हमें किस कोर्स में पढ़ना है, उसके बाद हमने समझा कि हम कौन सी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, हम इंडिया में पढ़ना चाहते हैं या हम बाहर पढ़ना चाहते हैं, और अगर हम बाहर पढ़ना चाहते हैं तो हम किस कंट्री में पढ़ना चाहते हैं। अब तीसरा सवाल आता है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ। सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को समझने चाहिए। अभी नितिन जी ने एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया जो आईआईटी से पास आउट थे और उन्होंने किसी भी तरीके की रिसर्च नहीं करी। अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अभी कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, वो 1 साल से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रही है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। एंड एवरी टाइम वो मेरे पास आती थी, वो मुझे बोलती थी कि मैम मुझे खाली क्राइस्ट जाना है और मुझे तो वहीं पढ़ना है। अब वो कल जब मेरे पास आई तो उसका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में एडमिशन हो गया है, मेन कैंपस में एडमिशन हो गया है, पर वो मुझे बोली मुझे नहीं जाना, और मैंने कहीं के भी और फॉर्म्स नहीं भरे क्योंकि लास्ट 1 साल से तो बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे क्राइस्ट जाना। और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों था कि तुमने कहीं और का फॉर्म नहीं भरा, जब मैं तुम्हें बोल रही थी कि और जगह के फॉर्म भरो, रिसर्च करो, तो शी सेड कि मेरे 2 जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो क्राइस्ट जाना चाहते थे क्योंकि उनके घर में बड़े उनके भाई बहन क्राइस्ट गए हुए थे। तो मैंने भी सोचा मैं भी उनके साथ क्राइस्ट चली जाऊंगी। अब हम तीनों का एडमिशन क्राइस्ट में हो गया, और जब मैं फीस पे करने के लिए और फॉर्मेलिटीज के लिए क्राइस्ट कैंपस मैंने विजिट करा, तो मुझे जाके वहां समझ में आया कि दिस इज नॉट वेयर आई वांट टू बी। यहाँ तो जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है मैं पढ़ना चाहती ही नहीं हूँ, जो कराया जा रहा है वो मैं करना चाहती नहीं हूँ। तो अब वो स्टूडेंट एक ऐसे सिचुएशन में है जहां या तो उसको 1 साल वेस्ट करना पड़ेगा, और या फिर उसको कहीं ऐसी जगह एडमिशन लेना पड़ेगा जो शायद उसके पोटेंशियल को जस्टिफाई ना करे, क्योंकि अब ज्यादातर जगह एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टाइम से रिसर्च करें आप किस तरीके की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन विद इन द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहते हैं तो शायद आप साउथ इंडिया की तरफ लीन करेंगे। सिमिलरली आप अगर बाहर भी जाना चाहते हैं तो वहां आप बड़े शहर में रहना चाहते हैं, छोटे शहर में रहना चाहते हैं, इंडस्ट्री किस तरीके के शहरों में है, आपको ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट मिक्स क्या है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये फैक्टर आपको समझना जरूरी है कि क्या वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खाली लोकल सिटीजन्स के साथ ही पढ़ रहे हो और वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट मिक्स है ही नहीं। फैकल्टी is a very important parameter for you to research on. हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आज की तारीख में उनके मेन फैकल्टीज, जो उनके टॉप फैकल्टीज होते हैं, उनके मेंशंस होते हैं, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब अपनी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएं तो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट के टाइम पे फैकल्टीज के ऊपर जरूर ध्यान दें। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटीज है जहाँ कोई जितनी टॉप फैकल्टीज है वो पीएचडी तक नहीं है, वो पुराने स्टूडेंट पास आउट्स हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहां पढ़ा कौन रहा है, अच्छी फैकल्टी है कि नहीं है, उनका रिसर्च एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उनका
ग्लोबल एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो किस तरीके के पुराने इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, इसके बारे में डेफिनेटली आज की तारीख में हर बच्चा बात कर रहा है कि प्लेसमेंट्स क्या है। इंडियन यूनिवर्सिटीज आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स डेफिनेटली अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज नहीं करती हैं। So there are ways to go on the website to find out more about the placement statistics, but it is an important criteria to keep in mind. Another very important criteria जो आपको दिमाग में रखना चाहिए वो है focus on your program. एक होता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी वेल नोन है, पर आपका प्रोग्राम इज जस्ट वन ऑफ द प्रोग्राम इन दैट यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का आपके प्रोग्राम पे कोई फोकस नहीं है। तो isn't it better to go to a university जो शायद रैंकिंग में 2 नीचे हो या 3 नीचे हो, लेकिन आपका प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी का मेन फोकस प्रोग्राम, तो वो अपनी बेस्ट रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं आपके प्रोग्राम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि आप जिस प्रोग्राम में पढ़ने जाना चाह रहे हैं, आप जिस कोर्स में पढ़ने जाना चाह रहे हैं, वो उस यूनिवर्सिटी का मेन प्रोग्राम है या नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज उस यूनिवर्सिटी का फोकस इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा है या रिसर्च की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए समझना, क्योंकि जो नॉर्मल रैंकिंग्स है जिसके ऊपर अब मैं नेक्स्ट 2 मिनट में बात करने वाली हूँ, उनमें रिसर्च कंपोनेंट बहुत हाई होता है। तो अगर आप आगे चल के अपने करियर में रिसर्च लेना चाहते हैं तो उस रैंकिंग का आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर इन होना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी खाली रिसर्च की वजह से रैंकिंग में ऊपर है और आपको रिसर्च में जाना नहीं है, आपको कोर्स कंप्लीट करके जॉब करनी है, तो शायद वो फैक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। सो आपको ये देखना है कि अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी ले रहे हैं जो बहुत रिसर्च सेंट्रिक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रिसर्च नहीं करना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ने के बाद मुझे जॉब लेनी है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं जो ज्यादा इंडस्ट्री अलाइंड है, जो इंडस्ट्री के साथ ज्यादा काम करके जॉब्स पे ज्यादा फोकस कर रही है बजाय की रिसर्च। And that is why it is important to not only focus on rankings, but build your own parameters, build your own focus areas कि मैं जो चाहता हूँ वो किस यूनिवर्सिटी में मुझे मिलेगा। So एक स्नैपशॉट है जो कि रैंकिंग्स खुद एक डिस्क्लेमर देती है कि हर रैंकिंग के पैरामीटर्स फर्क हो सकते हैं, और इसीलिए काफी आप बच्चे आप लोग आपके हमसे बोलते भी हैं कि मैम एक पर्टिकुलर रैंकिंग में तो एक यूनिवर्सिटी बहुत हाई रैंक करी थी, दूसरे में कम रैंक करी थी, क्योंकि हर रैंकिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे जब आप रैंकिंग्स को देख रहे हैं। मैं कुछ रैंकिंग के पैरामीटर्स डिस्कस कर रही हूँ। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है जो कि वर्ल्ड की सारी टॉप यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है। अब अगर इनके पैरामीटर्स को हम समझें कि किन बेसिस पे ये यूनिवर्सिटीज को रैंक प्रोवाइड कर रही है, तो एकेडमिक रेप्यूटेशन का basis is 40%. Now reputation is a very open ended word. Reputation का मतलब होता है कि हमारा परसेप्शन क्या है उस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये परसेप्शन को 40% वेटेज दे रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशंस पर फैकल्टी मतलब रिसर्च, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इन फैक्टर्स के बेसिस पे रैंकिंग दी गई है। तो अगर आप प्लेसमेंट देखने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, तो अगर आप देखें इस रैंकिंग में प्लेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। Not even 5% has been contributed to these rankings. So will this ranking be a true indicator कि वो यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी या खराब है आपको प्लेसमेंट दिलाने के लिए? मेरा जवाब है ना। आई डोंट नो आपका जवाब क्या होगा, राइट? सिमिलरली मैं एक और रैंकिंग पिक करती हूँ जो कि है टाइम्स यूनिवर्सिटी हायर रैंकिंग। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है ये और ग्लोबली भी बहुत पॉपुलर है। अब अगर हम इनके देखें तो इनका मेन फोकस इज ऑन रिसर्च, साइटेशन रिसर्च इन्फ्लुएंस को 30% इन्होंने वेटेज दी है।
टीचर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट को 30% वेटेज दी है. अगेन अनदर रिसर्च वॉल्यूम, इनकम एंड रेप्यूटेशन को उन्होंने फिर से 30% वेटेज दी है. तो ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, ये पर्टिकुलर रैंकिंग बहुत ही रिसर्च सेंट्रिक है. जिन बच्चों को रिसर्च की तरफ जाना है उनको इसकी रैंकिंग जरूर देखनी चाहिए, पर जिसको जॉब लेना है उसको शायद ये रैंकिंग नहीं लेनी चाहिए, अपने फैक्टर इन नहीं करनी चाहिए. अब हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, फॉर रैंकिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज. इंडियन यूनिवर्सिटीज को रैंक करने के लिए NIRF जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेमवर्क निकाला है, उनके क्या फैक्टर्स हैं. तो कुछ प्रोमिनेंट पैरामीटर्स है. टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जिसमें कि अगेन वो डॉक्टर टीचर्स देख रहे हैं, PhD कंबाइंड फैक्टर्स देख रहे हैं. सो अगेन रिसर्च फोकस. उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो उन्होंने लिया है वो अगेन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है. यहाँ पर अगर आप देखिए प्रोफेशनल प्रैक्टिस इज समथिंग दैट दे हैव फैक्टर्ड इन. सो कुछ एक वेटेज में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ऑन प्लेसमेंट्स, राइट. ग्रेजुएशन आउटकम्स which includes metric for number of PhD students and metric for university examinations. Again, there is no factor in for placements. Outreach and inclusivity. अगर आप यहाँ पर देखें कि कितना लोग कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट से वहां पर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है. और उसमें परसेप्शन रैंकिंग, अगर आप एक पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट इज परसेप्शन रैंकिंग, व्हिच मींस अगेन वी आर फैक्टरिंग इन कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इज पीयर परसेप्शन, बच्चों का परसेप्शन क्या है. सो हम यहाँ पर परसेप्शन के ऊपर वेटेज बहुत दे रहे हैं इन रैंकिंग्स में, जो कि एक क्वालिटेटिव असेसमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है. तो द ओनली पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि रैंकिंग्स अलोन कैन नॉट जस्टिफाई ओनली द रीजन यू गो टू अ यूनिवर्सिटी. आपको अपनी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है. आपको ये सवाल पूछने बहुत जरूरी है कि जो मैं करना चाहती हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे कहाँ मिलेगा. और इन सभी सवालों के जवाब आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलते हैं. तो सही तरीका होगा कि पहले आप शुरुआत करें रैंकिंग से, वहां से आप टॉप 20, 30, 40, 50 यूनिवर्सिटीज के नाम निकालें. उसके बाद अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करें कि मैं जॉब लेना चाहता हूँ, कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं इंडिया में पढ़ना चाहता हूँ, कि मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ, मैं बड़ी कंट्री में बड़ी सिटी में पढ़ना चाहता हूँ कि छोटी सिटी में पढ़ना चाहता हूँ. मेरे गोल्स क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करें. फैकल्टी कैसी है, इन चीजों के ऊपर रिसर्च करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके. तो आप एक्चुअली सेटिस्फाइड होंगे अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर जिसमें आप फाइनली जा रहे हो. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. द लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर is that no university can guarantee success. Success lies within you. Careers are not successful, people are successful. And इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जो नितिन जी ने भी थोड़ी देर पहले बात करी कि IIT जाकर भी वो बच्चा खुश नहीं है. He is wanting to change the course. So उसको सक्सेस नहीं मिली है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता आपके लिए वेल डिफाइंड है और आपके हिसाब से बना है. तो इस लाइन को प्लीज जरूर याद रखें एक मंत्र की तरह. नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस दैट आर देयर ऑन द चैट बॉक्स. So what are the eligible criteria required to study in Australia or UK? So ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए एलिजिबिलिटी, एकेडमिक एलिजिबिलिटी 60% है. जैसे कि मैंने बोला कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब 60% होती है एलिजिबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक इंग्लिश का असेसमेंट देना पड़ेगा विच इज आइल्स या टोफल या पीटी, कोई भी एक इंग्लिश का असेसमेंट देना पड़ेगा. एंड देन स्पेसिफिक प्रोग्राम बेस्ड एलिजिबिलिटीज हो सकती है. ब्रॉडली एलिजिबिलिटीज ये दो ही है. बाकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम दैट यू आर गोइंग इनटू. So if you want more information, you can text me and I will share program specific eligibilities also. Now there are questions on studying in Germany is free.
Yes, so studying in Germany is free at the public universities. जर्मनी में दो तरीके की यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक यूनिवर्सिटीज में द ट्यूशन फीस इज zero. They only charge you an annual 50,000 rupees for maintenance of your program. बाकी ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने फ्री लिखा है. हाँ, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने जाते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ ट्यूशन फीस. There's another question coming on Korea. Yes, you can study in Korea, but you have to understand that Korea is one country which has strong emphasis on their language. So you will have to be proficient in Korean language. That is one thing. Similarly, अगर आप जर्मनी पढ़ना जाना चाहते हैं तो वीजा के लिए जर्मन लैंग्वेज इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. आपको कम से कम B2 क्वालिफाई करना पड़ेगा. A1, A2, B1, B2 ये 4 लेवल्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे जर्मनी जाने के लिए. सिमिलरली कोरिया जाने के लिए आपको वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से कोरियन आना जरूरी नहीं है, पर वहां पर एडमिशन लेने के लिए या किसी भी सेगमेंट में काम करने के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा. And prominent industry that sits in Korea is again engineering. Science and engineering are the prominent industries that sits in Korea. तो अगर आप साइंस या engineering पढ़ने की सोच रहे हैं तो I think आप कोरिया जाने का सोच सकते हैं. Otherwise you will have to think why you want to go to Korea. अगर आप कोरियन म्यूजिक या फिल्म से influence होके जा रहे हैं तो please rethink, because I know Korean music and films have become a rage in your generation, but आपको एक बार सोचना चाहिए आप कोरिया पढ़ने क्यों जा रहे हैं, because जितना आसान दिखता है कोरिया में सेटलमेंट उतना आसान नहीं है. फूड एंड लैंग्वेज आर ह्यूज बैरियर्स देयर. So that were the questions. अगर आपके पास कुछ और questions हैं तो I am happy to take them. Otherwise I'll move on to the next segment with Vishal ji, who will be talking to you about how to research, what are the things to take care in mind. So over to you, Vishal sir. Thank you so much, Kudeji. So hey guys, a very good morning to everyone. Am I audible? Yes, you're audible. Okay, fine. So guys, very good morning. And this was one of the most amazing sessions by Kriti. And there are a lot of new informations that even I have received. So I'm completely assured that all of you might have got some of the amazing informations or things to take care of. Now, let's try to understand when we research. So, ma'am started with the research कि आपको क्या करना है, कहाँ से करना है, क्यों करना है, कैसे उसकी research होती है, कितनी ranking parameters होती हैं, and how you take care of those ranking parameters. College. So, हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले करना है अपने ऊपर research. ठीक है? कि what you are good at, what are the plus strengths and weakness that you have. What are the aptitudes, interests, personality that you have? Next, you need to understand कि all these things, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके स्ट्रेंथ्स पर काम करती है, राइट? तो हमने हमेशा समझा है कि every person is unique. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है. How this every person is unique is based on their aptitude, personality, and interest, right? Now, when we do this, we need to understand कि every industry or every job parameters are different, are unique. ठीक है, हर किसी में एक specific set of skills की requirement होती है. तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें पहले अपनी uniqueness समझनी है, फिर हमें इंडस्ट्री की यूनिकनेस समझनी है जिस इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं, और हमें इस दो यूनिकनेस को कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से. दैट्स इट. ठीक, जब हमने ये कर लिया कि हमें अपनी और इंडस्ट्री क्या समझ में आ गया, अब तीसरा रिसर्च जो हमें करना है वो हमें करना है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज दैट वी हैव, कि कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जो कि मुझे उस पर्टिकुलर जॉब में या उस पर्टिकुलर करियर में पहुंचा सकती है, या कौन सी डिग्रीज हैं जो मेरी बेसिक प्री रिक्वायरमेंट टू गेट इनटू दोज करियर्स एलिजिबल हो. ठीक है. After this, once we are done through this, obviously next क्या स्टेप होगा, डिग्री के साथ साथ. तो डिग्री तो हमने रिसर्च कर ली कि यार मुझे बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीए करना है, एमबीए करना है, एमए करना है, एमएससी करना है.
बीटेक करना है, सो मुझे स्पेसिफिकली डिग्री कौन सी लेनी है, ये जब आपने डिसाइड कर लिया, नाउ विल डिसाइड ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कहाँ से, कैसे। साथ ही साथ में, इसके साथ ही में हमें ये भी डिसाइड करना है कि क्या हमें इंडिया से पढ़ना है या बाहर जाकर पढ़ना है, ठीक है, अब्रॉड जाके पढ़ना है। The research statistics or the process will be entirely, the process will be same, the method will be different obviously, but the process will be same, चाहे आप इंडिया से पढ़ना चाहते हो, चाहे आप बीसीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, but the process will be same, इंडिया से या अब्रॉड से, प्रोसेस सेम है, तरीका सेम है, आपकी यूनिकनेस के हिसाब से आपने डिसाइड करना है। वंस यू डन दिस, I guess this would be very helpful. Second thing which we need to understand here is कि the only person who is there to decide कि आपने क्या करना है, that person should be you. Everyone around you is only there to help you to find out the ways to research. ठीक है, अल्टीमेटली जो डिसीजन होना है वो आपका होना है, अल्टीमेटली जो प्रोसेस वर्क जो करना है वो आपने करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल कम टू अस एंड से कि सर मुझे बता दो कि मैं क्या कर लूं, कौन सी चीज अच्छी है। That's not how it works. So you need to ask questions like कि okay, now I'm sure कि I want to do these different things. मेरे पास ये 10 ऑप्शंस हैं, 10 ऑप्शंस में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिकली कौन सी चीज में ज्यादा अच्छा स्कोप है। And that's where a counselor comes into picture to give you another scope of thought, जहां से आप समझ पाओ कि इन 10 में से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आओ और हम आपको बता दें कि अच्छा ये चीज अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है तो आपके लिए अच्छी होगी, तो ये ऐसे काम नहीं करता, right? So anytime when you ask a counselor कि what is a good thing that I want to do, you need to understand, you need to know कि आपकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर बिल्कुल जीरो से भी आप आ रहे हो तो वी स्टार्ट फ्रॉम दैट प्रोसेस, बट डोंट कम एंड से और टू एनी काउंसलर अब्रॉड कहीं पर भी कि मुझे आप बता दो कि मुझे क्या करना है, मुझे आप बता दो कि कौन से कॉलेज में जाना है, मुझे आप बता दो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, इंडिया में पढ़ना है या अब्रॉड में पढ़ना है, ठीक है। इट हैज टू बी योर डिसीजन, इट हैज टू बी योर रिसर्च, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसर्च से स्टार्ट करेंगे आपने, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, क्लैरिफिकेशंस की जरूरत होती है। If you are not able to follow the process by your own, if you are not able to understand okay, what are the basic requirements to get into, and now the second topic that I want to take care of is the Google. जनरली क्या होता है ना कि हम गूगल पे सर्च करते हैं कि टॉप 10 करियर्स थ्रू पीसीएम, एंड वी कंसिडर दैट कि अच्छा यही 10 हैं जो मुझे चाहिए थे। नहीं, ये नहीं करता, राइट? तो वो टॉप 10 किसके हिसाब से हैं ये आपको नहीं पता, तो जिसने भी वो आर्टिकल लिखा है उसके हिसाब से वो टॉप 10 है, आपके हिसाब से है क्या? दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू थिंक ऑफ। सो यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट टॉप 100 करियर्स फ्रॉम पीसीएम। और इसके पहले भी हमने लास्ट सेशन में बात किया था अबाउट स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक करियर्स। सो आपको ये समझना है कि आपको स्पेसिफिक में जाना है या नॉन स्पेसिफिक में जाना है, उसके हिसाब से फिर आप ये चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पर जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं कि यार गूगल पे कैसे सर्च करेंगे, सिर्फ यही सर्च नहीं करना है। गूगल में जब आप सर्च करोगे आपको ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिलते हैं जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि करियर इन वीएफएक्स डिजाइनिंग से क्या होता है। विशाल सर मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा। Yes. And I ask this question on behalf of student to you and Kriti ma'am both. Which is a better platform to search, YouTube or Google? Because और बच्चे तो आजकल इंस्टा पे भी जाके सर्च करने लगे। Yes. तो ज्यादा ऑथेंटिक
इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? ओके, सी ऑथेंटिसिटी की अगर मैं बात करूं सर, तो ऑथेंटिक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जहां पे आपको एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, ऐसी कोई जगह नहीं। The only thing we need to understand is that there are a lot of informations available and we need to find all the informations and we need to collect और उसको फिर एनालाइज करना खुद का काम है, क्योंकि हर एनालिसिस जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, that analysis is based on someone's perception over that particular career, right? मेरा परसेप्शन उनके परसेप्शन से मैच होता है या नहीं होता है, आई डोंट नो, right? So we need to understand कि ये options है मेरे पास, and I was giving an example to this कि let's say I want to get into VFX designing, ठीक? VFX designing मेरे हिसाब से is a good career option because I have seen Avatar, I have seen Bahubali, I have seen Avengers, and I have seen कि okay ये सारी चीजें जो है ये VFX से बनाई गई हैं. I might have seen some of the TV serials जिसमें I can understand कि अच्छा ये VFX पे काम हुआ है इसमें, but क्या वो VFX जो मुझे समझ में आ रहा है VFX है, क्या ये मेरे पेरेंट्स को भी VFX समझ में आ रहा है? शायद नहीं आ रहा है. एंड देन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ पेरेंट कि मुझे VFX पता है क्या होता है, पेरेंट को नहीं पता है. मैं बोल रहा हूँ VFX डिजाइनिंग में मुझे करियर बनाना है, पेरेंट बोल रहे हैं नहीं बनाना. गलत पेरेंट नहीं है. The only thing is because they don't understand what VFX is, and that's where our research will come into picture, where we will research what is VFX, what is the job prospect of VFX, what are the skills required for VFX, what are the different universities or colleges which are offering courses in VFX, what is the career scope in VFX, what is the future of this particular VFX, and then collecting all the data from different resources. We need to find out, we need to structure this data and then we need to present it to our parents, because I understand कि parents का basic motto या basic objective ये होता है कि बच्चे का career अच्छा बन जाए. And if you can answer that with the what you want to do, if you can answer that particular question to your parent, there are high chances that they'll try to understand कि okay मेरा जो objective वो clear हो रहा है, so I can see कि इस particular field में एक अच्छा career scope है. तो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका एक स्ट्रक्चर बनाकर प्रेजेंट करने आना चाहिए. जिसमें उस स्ट्रक्चर में बेसिकली जो मैं समझता हूँ जो चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले कि ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री में काम क्या होता है, इसका फ्यूचर क्या है, करियर स्कोप क्या है, पैसे कितने होते हैं इसमें, कहाँ से किया जा सकता है, टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, और ऐसे कुछ लोग जिनका एग्जांपल्स दिया जा सके, राइट? तो हमने इंडिया में देखा है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पेरेंट जानते हैं कि अच्छा क्रिकेट एक अच्छा करियर ऑप्शन है. जब हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो हम महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, इनके एग्जांपल देते हैं या पेरेंट को पहले से पता होता है. अब ऑब्वियस सी बात है जो न्यू मॉडर्न एज करियर्स हैं उसके बारे में, जब उसके बारे में नहीं पता पेरेंट्स को, तो उससे रिलेटेड लोगों के बारे में कैसे पता होगा? अगर आप ई गेमिंग की बात कर रहे हो तो आपको ई गेमिंग में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका एग्जांपल देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि देखो ये बंदा है, ये इतना इतना काम किया है इसने, लोग इसको इतना जानते हैं, इतना पैसा इसने कमाया है, इस पर्टिकुलर चीज का फ्यूचर स्कोप कैसा है. सो आई गेस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका रिसर्च ही सबसे ऑथेंटिक है. द डिफरेंट इंफॉर्मेशन, गूगल, यूट्यूब, every of these resources will help you to find or to collect the data and to analyze the data as per you. So I guess this would be a much better way to research rather than just कि किसी एक की बात को मैं सुनकर या मानकर या पढ़कर मैं मान जाऊं. I agree, Vishal ji. Can I just add a point here? Yeah, please. Answering the question Nitin ji also said, and the point that you just mentioned, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि खाली एक किसी भी वेबसाइट पे जाकर उनका व्यू पॉइंट लेना इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज ये अगेन व्यू पॉइंट्स है. हर आर्टिकल जो वेबसाइट गूगल पे डला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉग है, एक आर्टिकल है जो किसी ने अपने व्यू पॉइंट, अपनी समझ, अपने नजरिए से बनाया है. तो आप डेफिनेटली डिफरेंट लोगों के नजरिए को समझिए, लीजिए, लेकिन खाली उस एक नजरिए के बेसिस पे अपने लाइफ का डिसीजन मत लीजिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू इज कोरा. आप
आज की तारीख में ज्यादातर बच्चे कोरा पे जाते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं और एक व्यू पॉइंट बनाकर आ जाते हैं कि मैम हमने तो इस यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे रिव्यूज पढ़े, हमने तो इस यूनिवर्सिटी के बड़े ही खराब रिव्यूज पढ़े, तो आप कितना ही बोल दो हम तो इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने 4 रिव्यू पढ़े थे, चारों के चारों खराब थे। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये रिव्यूज कैन बी देयर विद अ पर्पस। आज वो रिव्यूज चाहे वो गुड रिव्यूज है चाहे वो बैड रिव्यूज है, वो कॉम्पिटिटर डलवा सकता है, मैं वो यूनिवर्सिटी खुद पोस्ट करवा सकती है। किसी एक बच्चे को किसी एक बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उस गुस्से में आकर उस बच्चे ने रिव्यू लिख दिया, तो ये काफी कारण हो सकते हैं वो रिव्यू पोस्टिंग के। सो खाली अगेन कोरा पे विश्वास मत करिए, किसने लिखा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उसके ऊपर भी रिसर्च करिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू think through the data that you're collecting from the web. Yes, absolutely. And one more thing, कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, and if you want to get into more details of that particular field, Twitter is a very good option. LinkedIn is a very good platform where you can actually connect with people and just drop message to these people, DM to these people कि sir these are the things that I wanted to make my career out of in this particular industry, and I assume that you are from this particular industry, can you guide us? And in LinkedIn mostly the people are more genuine, the people are more professional, and people do respond. Not everyone responds, but some of these people responds who are working on that particular industry. So LinkedIn is a very good platform when you really want to get into the insights of that particular industry or that particular career option. So LinkedIn again is a good option other than Google or YouTube to get the information, right? And at the end of the day, it's all about the more information that you collect, the more analysis that you do of those particular things. And ठीक है, so this at the end your decision will be your decision, and you'll have to bear the fruits or the consequences of your decisions, right? So you need to understand that every decision matters, and you'll have to research with all the possibilities, and that's where some of the people come into picture who actually guide you along for a better research methodologies, who can guide you along, okay, you need to research on these particular points, or you research this, do you feel that this can be done through a different way? That's where counselor comes into picture. That's where three of us comes into picture, and you can obviously connect with any one of us. So that's it from my side for the day. And for the closing statement, I'll ask Mr. Nitin Srivastava. Thank you, Vishal, and thank you, Kriti. See, just okay, I guess there's okay, right. So, दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। नंबर 1, एक मिथ करियर प्लानिंग और करियर डिसीजन मेकिंग और कॉलेज डिसीजन मेकिंग को लेके क्लियर कर लीजिए। नंबर 1, कोई वेबसाइट आपको बताएगी, कोई काउंसलर बताएगा, कोई साइकोमेट्रिक असेसमेंट आपको बताएगा, कोई पेरेंट आपको बताएगा, कोई फ्रेंड आपको बताएगा कि मुझे क्या करना है। सॉरी, इस भरोसे बिल्कुल ना बैठे। Even we counselor can help you. The actual decision need to be taken on the research based one. Now, अब अगर मुझे डिसीजन लेने हैं ना, तो मैं आई कम फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो मैं हमेशा करियर के उस एस्पेक्ट पे बात करता हूँ सारे वेबिनार्स पे। ह्यूमन बीइंग्स 2 तरीके से डिसीजन लेते हैं, रादर 3 तरीके से डिसीजन लेते हैं। एक होता है अ डिसीजन विच इज कंप्लीटली इमोशनल। मुझे इससे प्यार हो गया है, तो जब अपन प्यार के इमोशन में रहते हैं तो उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं दिखती अपन को, फिर बाद में जाके समझ में आता है अरे यार ये तो टॉक्सिक हो गया। ठीक, so where the emotion is dominating, it's okay there, when it comes to love relationship it's okay, चलता है। बट लोग करियर में, सर मुझे पैशन फॉलो करना है, they just go ahead without getting into the facts।
रिसेंटली अनदर केस केम टू मी, 6 बार नीट दिया है, 6 टाइम्स, कौन देता है? देन जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो मेरे पास आया केस, दो इट केम थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज। मैंने पूछा बेटा पहले अटेम्प्ट में नंबर कितने आए, दूसरे में कितने आए, तीसरे में कितने आए? चलो 2 अटेम्प्ट तक समझ में आता है, राइट? पहले के नंबर थे 70, दूसरे में नंबर थे सम अराउंड 120, और तीसरे में भी 130 के आसपास। मैंने कहा बेटा सिलेक्शन कितने में होता है? एंड ही इज लाइक कि सर 600 प्लस तो चाहिए। अब 170 से 600 पहुंचना, आपका इमोशन हो सकता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट देयर हैज टू बी अ स्ट्राइक। आप फैक्ट्स को नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। सामने वाला आपको बेइंतहा प्यार कर सकता है, बट वो करियर में सेट नहीं है तो माँ बाप शादी करने नहीं देंगे। ये पुरानी बॉलीवुड मूवी नहीं है कि प्यार से घर चल जाएगा। सेम अप्लाइज विद करियर। तो एक प्रॉपर बैलेंस बनाइए, राइट? एंड आई थिंक कृति मैम हैज गिवन अ फैंटास्टिक फ्रेमवर्क, राइट? मतलब इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना टू द पॉइंट, इतना सिंपल फ्रेमवर्क आपको नहीं मिल सकता है। तो यूज दीज फ्रेमवर्क्स, ठीक? तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू कृति मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स विशाल। स्पेशली आई लाइक कि अपनी यूनिकनेस को करियर की यूनिकनेस और इंडस्ट्री यूनिकनेस के साथ मैच करिए। ये एस्पेक्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड हो जाता है, फिर बाद में जाके पता चलता है यार ये तो मैं नहीं चाह रहा था। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, इतना सब करने के बाद भी देयर इज नो 100% गारंटी। देयर विल बी सर्टेन थिंग्स विच आर अनसर्टेन, और जो हमको जाके पता चलेंगे। बट आपके पास एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो उस समय अगर आपको कुछ गलत हो भी गया तो आपके पास एक रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप अगेन यू कैन चेंज इट, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग इज रिड्यूस्ड। बट बिगर रिसर्च करके जाएंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग इज वेरी हाई। एंड कॉलेज जाने के बाद ना फिर यू टर्न नहीं होता है। एंड लास्ट थिंग आई लाइक टू हियर, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने फ्रॉम किसी एग्जाम की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, इमोशन पैशन सब लाइए, बट समय रहते उस तैयारी से एग्जिट करना भी उतनी जरूरी है। स्पेशली जो यूपीएससी या इन एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं, 8-8 10-10 अटेम्प्ट, 40-40 साल तक, सरकार बोलेगी 50 साल तक, तो 50 साल एग्जाम थोड़ी देते रहोगे। So this is where the entire research will help you out. Thank you so much, everyone. One request: the group is intact. Please don't leave the group. राइट इन्फॉर्मेशन हम कोई उस पे, आप देखेंगे एक एक महीने तक उस पर कुछ चीज शेयर नहीं होती, सिर्फ काम की चीज शेयर होती है। अनदर आई थिंक 100+ स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट ग्रुप। वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस सीरीज, राइट? बाय शेयरिंग इट, आप शायद किसी के जीवन के कई साल बचा सकते हैं, कि आपके जरिए से उसको इन्फॉर्मेशन बनी और उसको करियर डिसीजन लेने में मदद मिली, राइट? थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल संडे। थैंक यू मैम, थैंक यू विशाल, बाय बाय। Bye, guys. Stop. Thank you, Nasreen.